لوئر دیر میں تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کے نامناسب رویے کے خلاف محکمہ صحت کے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے اور قلم چھوڑ ہڑتال کی ہے، جس کی وجہ سے دفتر آنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبداللہ مدنی سے۔ جی بتائیے گا۔ ہوں ضلع لوئر دیر کے ہیڈ کوارٹر تیمرگرہ جو ضلعی سیکٹریٹ ہے وہاں بلامبٹ میں، اور آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تمام ملازمین نے تالہ بند ہڑتال کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے جو روزانہ کے معمول کے دفتری امور ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ جو سائلین ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ایپکا کے ذمہ داران اور اگیگا کے ذمہ داران کا ایک ہنگامی اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں کل مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی چند ایک قائدین کی جانب سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے ساتھ مبینہ بدتمیزی اور ان کے ساتھ ذہنی اور جسمانی تشدد کی شدید مذمت کی گئی۔ اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اسٹیٹ کے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ یا انہیں سرکاری امور سے روکنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اگر یہ رویہ ترک نہ کیا گیا، مذکورہ رہنماؤں کی جانب سے معذرت نہ کی گئی، تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ضلع بھر میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینٹ الائنس کے زیر انتظام بھرپور احتجاجی مظاہرے بھی کیے جائیں گے، اور تمام دفاتر میں تالہ بند اور قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی۔ اس حوالے سے مقامی جو تھانہ ہے، تھانہ بلامبٹ، وہاں پر درخواست بھی ارسال کی گئی ہے ڈی ایچ او کی وساطت سے کہ جو بدتمیزی میں مبینہ طور پر جو قائدین ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تاہم ابھی تک ایف آئی آر کی اندراج کے حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ جی، روز بروز بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں نے عوام کی زندگی کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ٹنڈوالا یار میں بھی مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ادریس سوبروس کی اس رپورٹ میں۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کی روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ مہنگائی کا دباؤ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ آٹا، گھی، دالیں، چاول، کوکنگ آئل، چینی اور چائے جیسی بنیادی ضرورت بھی اب مہنگی ہو چکی ہے۔ ہر نئے دن کے ساتھ قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور کئی گھرانوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنتا جا رہا ہے۔ گھریلو اخراجات کو سنبھالنا دن بدن دشوار ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، مگر خرچے کئی گنا بڑھ چکے ہیں، جس سے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہے اور حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ آٹا، چینی اور تیل کے ریٹ اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ ہم غریب آدمی اس میں پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ بچوں کی انتظامیہ کو گزارش ہے کہ ریٹوں میں تھوڑی کمی پیشی کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی یا عوام کو اسی طرح مہنگائی کے بوجھ تلے دب کے جینا پڑے گا۔ کیمرامین ارباب جروار کے ساتھ ادریس سوبرو، NTN نیوز، ٹنڈوالا۔ تحصیل منشن آباد میں تاجروں کا حکومت کے خلاف شدید احتجاج۔ مہنگے پیٹرول، ڈیزل اور بھاری جرمانوں کے خلاف انجمن تاجران کا شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ مین بازار مکمل بند کر دیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے کاروبار نے تباہ کر دیا۔ فوری ریلیف نہ دیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جاننے کے ہمارے نمائندے محمد آصف مغل سے۔ جی بتائیے گا آصف۔ تحصیل منشن آباد میں تاجر برادری نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ اور جرمانوں اور مبینہ زیادتیوں کے خلاف بھرپور احتجاج اور ہڑتال کی۔ انجمن تاجروں نے مین بازار منشن آباد کی کال پر دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر دی۔ انجمن تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومتی غلط پالیسیاں اور صاف ستھرا پنجاب TM اور پیرا فورس کی کارروائیوں نے کاروبار تباہ کر رکھے ہیں۔ تاجروں کے مطابق بھاری جرمانے دکانوں کی سیلنگ سے زیادہ ہیں۔ تاجروں نے موقف اختیار کیا کہ اکثر دکانداروں کاروبار شام کے بعد شروع ہوتے ہیں، مگر متعدد اداروں نے کام کرنے سے روک دیا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ اگر حکومت اس طرح کرے گی تو ہم احتجاج کا وسیع دائرہ اختیار کریں گے۔ اتنی مہنگائی میں ہمیں کام کرنے دیں۔ ایک تو پہلے ہی حکومت نے بہت مہنگائی کر دی ہے، اوپر سے پیرا فورس دکانداروں کو تنگ اور بھاری جرمانے کرتی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد آصف مغل، NTN نیوز، منشن آباد۔ چوروں کے خلاف بڑی کارروائی۔ اڈہ ذخیرہ کے مانیٹرنگ افسر آصف طاہر جویہ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ احسن سرفراز صدیقی کی زیر نگرانی 9L نہر پر پانی چوری کے متعدد پائپ موقع پر پکڑ لیے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے راشد چیمہ سے۔ جی راشد، آگاہ کیجیے گا۔
बिल्कुल महकमा नहार की पानी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अड्डा जखीरा के मॉनिटरिंग ऑफिसर आसफ तैर जोया ने असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग असम सरफराज सदीकी की सरबराही में नाइन एल नहर पर पानी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मौके पर मुतअद्दिद पाइप पकड़ लिए और उनका कहना था कि पानी चोर कितना ही बाअसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ महकमा नहार के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी ताकि पानी चोरी की रोकथाम हो और काश्तकारों को उनके हिस्से का पानी हेड से टेलों तक मुहैया किया जाएगा। पानी चोरों को किसी सूरत पानी चोरी नहीं करने देंगे, ये भी उनका कहना है कि और उनके खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर गवर्नमेंट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लतीफाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल कॉलेज, असातिज़ा और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे आकिल खान की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए भारतीय जारियत को पाक फौज के जांबाजों के मुंह तोड़ जवाब को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इसी हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में प्रिंसिपल डॉक्टर मुजीबुल्लाह शेख, असातिज़ा और तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर मुजीबुल्लाह शेख ने कहा कि आज के दिन भारत ने अपने घिनौने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए पाक सरजमीन की तरफ मेली आंख से देखा था और हमारे शहर दिल अफवाज ने भारत के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। तकरीब के बाद रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारों से मुज़य्यन बैनर उठा रखे थे, जबकि शुरकाए रैली पाक फौज के हक में नारे भी लगा रही थी। एनटी न्यूज़ से बात करते हुए शुरकाए रैली ने कहा कि अल्लाह का वाज़े फरमान है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि दुश्मनों के खिलाफ कुव्वत और ताकत भरपूर तरीके से तैयार रखो और उनको कोई मौका फराहम न करो। चौकन्ने रहो, मुस्तैद रहो, तैयार रहो और सुधाए हुए घोड़े, सवारियां बेहतरीन वो तैयार रखो और उसके ज़रिए से अल्लाह के दुश्मनों को और तुम्हारे जो अपने दुश्मन हैं उनको, उन पर तुम्हारा रोब हो, तुम्हारी धाक बैठ जाए, तुम्हारी तैयारी के नतीजे में कि उनको मौका ही ना मिले, उनको हिम्मत ही ना हो कि वो इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देखें। जब बंदा, ये पूरी कौम एक हो जाएगी और एक मौक़िफ़ पर डट जाएगी कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करेगा। जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया वो पूरी दुनिया के सामने है। यकीनन ऐसी कोई हिमाकत अगर दुश्मन दोबारा करेगा तो हम उसको सफाई हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखते हैं। रैली के इख्तिताम पर परचम कुशाई की गई और मुल्क के पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ का एहतमाम भी किया गया। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, एनटीएन न्यूज़, हैदराबाद। जलालपुर पीरवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लापता खातून और उसके 4 बच्चों को लाहौर से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। थाना सदर जलालपुर के एसएचओ काशिफ अशरफ ने इंचार्ज चौकी खान, बेला असद जावेद और अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और सीडीआर डाटा की मदद से कामयाब कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक खातून 2 हफ्ते कबल मूसा बेट से पुरअसरार तौर पर लापता हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान खातून और बच्चों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने वाले मुलजिम शान बल्द हनीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाजियाब होने वाली खातून और बच्चों को कानूनी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले कर दिया गया। सीपीओ मुल्तान ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। शहरियों ने भी पुलिस को बरवक्त कार्रवाई पर सराहा। मार्के हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर समुद्री में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर महमूद मंच, सीईओ बल्दिया ताहिर फारूक ने की। रैली में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया समेत और मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की है। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मजीद जानेंगे उस्मान कादरी की इस रिपोर्ट में। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर समुद्री में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर महमूद मांझ, सीईओ बल्दिया ताहिर फारूक ने की। रैली में एमओआर जाहद फरीद, चौधरी मुसद्दक गुज्जर समेत अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, रेस्क्यू 1122, रेवेन्यू अमला ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर महमूद मांझ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना। 9 मई को हमारी अफवाज पाकिस्तान एक सीसा फैलाई हुई दीवार बुनियाद मरसूस के तौर पर उभरी है। भारत को मार्का हक के अंदर जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नाको चने चबाए हैं और भारत जो है उसके नापाक राधे खाक में मिलाए हैं और इंशाल्लाह अब अफवाज पाकिस्तान इस कदर मजबूत हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भारत जो है वो
बिल्कुल मैली आंख से देखने का सब्र भी नहीं कर सकता। आज का दिन उस मार्का हक की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने दुश्मन को जो उसके नापाक अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया और पाकिस्तान का सर जो है पूरे आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी कौम अपनी जो फ़ौज की कुर्बानियों को इस दिन के हवाले से उसको पेश करती है, उनको खिराज तहसीन पेश करती है और इस अज़म को दोबारा दोहराती है कि जब भी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो पूरी कौम एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह फ़ौज के साथ खड़ी। पाकपतन में बासर अफराद ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद ताजिर के प्लॉट पर मुबैना तौर पर कब्जा करके तामीर शुरू कर दी है। ताजिर रहनुमा की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद जानेंगे एनटी न्यूज़ के नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन ताजर रहनुमा शहबाज कम्बो के मुताबिक उसने नूर जमात से मोहल्ला पीर सुल्तान में प्लाट खरीदा। कुछ अनासर की प्लाट पर नीयत ख़राब हुई तो हुक्म इम्तनाई ले लिया। मुबैना कब्ज़ा ग्रुप अनासर असद बशीर वगैरह ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद कब्ज़ा कर लिया और तमीर शुरू कर दी। शहबाज कम्बो के मुताबिक प्लाट की रजिस्ट्री मेरे पास है और पटवारी रिपोर्ट मेरे हक में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब व दीगर मुतल्लिका हकाम नोटिस लें और प्लाट वागुजार कराएं। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान डुड्डी, NTN न्यूज़ पाकपतन। नया तूफान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त अवाम तक मुंतकिल होने लगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 100 रुपये फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद रेट 550 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि इंतजामी के अदम तौजही के बायस दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे खानेवाल से शेख सुहेल की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। जो मुर्गी का गोश्त की कीमत है वो जो है 15 दिन के अंदर कम से कम 150 से लेके 140 रुपये किलो तक बढ़ गई है, जिससे जो शहरी हैं खानेवाल के वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो मुर्गी का गोश्त लेना है। सर बताइएगा, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया तो क्या कहेंगे, किससे मुतालबा करेंगे? हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं। सब्ज़ियाँ और चिकन ही सस्ता मिल रहा था, जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़े अब सब्ज़ियाँ और चिकन भी बढ़ गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? एक सफ़ेद पोश आपको सिर्फ इल्तिजाई सुना सकता है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है पेट्रोल की फिल फोर प्राइस नीचे किए जाएँ ताकि कोई महंगाई में कंट्रोल हो सके। जी बिल्कुल, शहरी की जैसे आपने कहना सुना कि रोज़ ब रोज़ जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अशिया खुर्द और नोश की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो सफ़ेद पोश तबका वो पिस के रह गया। उनका यही कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पेट्रोल की कीमतों में कम से कम कमी की जाए ताकि जो अशिया खुर्द नोश से सब्जियाँ आते हैं और जो मुर्गी के गोश्त हैं, मुर्गी के गोश्त में 140 से लेकर 150 रुपये तक इजाफा हो गया है और जो है मुर्गी का गोश्त अब सफ़ेद पोश तबके की पहुँच से दूर हो गया है। जी इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।